20 اور 3 23 آخری 2 سطر 5واں رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ الروم کا. تھوڑی سی تلاوت سب حضرات تلاوت فرمائیں. ایک تو نیند بھاگے گی اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی فرق بھی تلفظ میں ہوگا تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الرجيم. اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يومئذ يصدعون. اس سے پہلی آیت میں اللہ کی 4 فیصلوں کا ذکر تھا. پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا. اور یہ کہا تھا کوئی ہے اور اس کے شریکوں کو جو تم شریک بناتے ہو ان میں سے ایسا کوئی کرنے والا. جب ان کاموں میں اس کا شریک نہیں تو برکتیں دینے اور عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. اس رکوع میں جو ابھی شروع ہوا زجر ہے شروع میں کہ لوگوں کے برے اعمال اور شرک اتنا بڑھ چکا ہے کہ زمین کا امن خراب ہو گیا. اور پھر ڈراوا ہے دنیا کے عذاب سے کہ چل پھر کر دیکھو پہلے مجرموں کو کیا حال ہوا. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ توجہ نہیں کرتے تو تو اپنے رخ کو اس توحید والے دین کی طرف متوجہ رکھ. یہ دوبارہ حکم ہے، اس سے پہلے بھی اس صورت میں. اور یعنی ایک ہی بات مختلف الفاظ سے تاکید کے لیے. اور پھر تخویف اخروی. یہ بات بھی پہلے آئی تھی کہ اس دن یصدعون الگ ہو جائے گی. پہلے کہا تھا یتفرقون، اب یصدعون بات ہے کہ یہ یہاں دنیا میں جو گڑ مڑ ہیں یہ الگ ہو جائے گا، الگ سچا جھوٹا جدا ہو جائے گا. اور ان دونوں کی تشریح پھر آگے دلائل جو باقی ہیں توحید کے 8 دلائل ایک رکوع میں تھے، پھر 2 اس کے بعد آئے تھے. پھر دلائل من آیاتی اس صورت میں اس انداز سے دلائل توحید. اور پھر تخویف بشارت، پھر دلیل توحید کی اللہ الذی یرسل الریاح، بارشیں دینے والا. بارش کی ذرا تفصیل ہے اور سب توحید کا ذکر. اور فرمایا کہ یہ ضد اور تعصب کی وجہ سے مردوں کی طرح ہو گئے. ان کی بات قبول نہ کرنے سے آپ پریشان نہ ہوں. یہ اس صفحے کے جو ظہر الفساد فی البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بگاڑ خشکی اور سمندر میں عام ہو گیا. بگاڑ خشکی اور سمندر میں عام ہو گیا. ظہر عام ہو گیا، پھیل گیا فساد خشکی اور سمندر میں. اس کی مفسرین نے بہت اچھی وضاحتیں کی ہیں. بر اور بحر کی وضاحت بھی. اور فساد سے کئی چیزیں، زلزلے، سیلاب، وبائیں، بیماریاں، لڑائیاں، فساد، جنگ و جدل،
फसाद आम हुआ, और इस फसाद का सबब क्या है? दिमाग का सबब है देना, दिमाग का सबब है लोगों की बदआमालियों की वजह से। लोगों की बदआमाली की वजह से। ये अल्लाह वाले जो दावत और तबलीग के हवाले से बात करते हैं, उनकी ज़ुबान पर अक्सर ये बात आती है कि आमाल के ऊपर अहवाल मुरतब होते हैं। आमाल अहवाल आमाल किताबें हैं, ये उसकी दलील कई आयतों में ये मज़मून है। लोगों की बदआमालियों की वजह से बिगाड़ पैदा हुआ, ज़लज़ले आते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सैलाब आते हैं, वबाएँ फैलती हैं, लोगों की बदआमाली। और अहादीस में इसकी बड़ी तशरीह आती है, ये बुरा अमल ज़्यादा होगा तो ये सज़ा होगी, ये वो बुरा अमल ज़्यादा होगा दुनिया में तो ये अज़ाब आएगा। यानी अज़ाबों के लिए आमाल का नाम लेकर हुजूर ने बतलाया। कत्ल व गारत का क्या नतीजा, ज़िना आम होने का क्या नतीजा, और लोगों की मदद न करने में उसका क्या नतीजा, मुख्तलिफ अहादीस में तशरीह आती है। इसी लफ्ज़ की तशरीह है। और एक इजमाली लफ्ज़ है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला लोगों के हालात को नहीं बदलता जब तक लोग अपने आमाल को न बदलें। आमाल अच्छे हों, हालात अच्छे होंगे, आमाल बुरे होंगे तो अहवाल भी ख़राब होंगे। तो यही जो यहाँ लफ्ज़ है, ये दूसरे अल्फाज में एक जगह है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हें जो मुसीबत पहुँचती है तुम्हारे आमाल का नतीजा होती है, और अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत से बदअमालियों को माफ़ कर देता, सज़ा नहीं देता। ये बात बड़ी अहम है। आमाल, और जिसको बच्चों को भी सिखाया जाता है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। पर इस यहाँ तक तो बिल्कुल इसका तर्जुमा है कि ये आमाल के ऊपर ही मिलती जन्नत मिलेगी रहमत से, लेकिन वो रहमत के ज़ालिमों और काफिरों के लिए नहीं होगी। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अगली जो बात है वो थोड़ी सी तफसील तलब है कि खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये बात ज़रा थोड़ी सी इत्तेफाकी नहीं है। पहला जुमला बिल्कुल ठीक है। तो लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, अल्लाह ताला उनको चखाएगा उनकी बदअमालियों की कुछ सज़ा, पूरी सज़ा नहीं। दुनिया का बड़े से बड़ा जो अज़ाब है वो पूरी सज़ा नहीं, पूरी सज़ा तो जहन्नम है। ये बाज़ल्लज़ी अमिलू, कुछ अमाल वो वहाँ जो आया था याफू अन कसीर, बहुत सी बदअमालियों को अल्लाह नोटिस नहीं लेता, माफ़ कर देता है। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट जाए, वो थोड़ा थोड़ा सजा दुनिया की इसलिए ताकि लोग संभल जाएं, रुक जाएं। ये तंबीहात हैं, अजाब नहीं है असल में। कुल सीरू फिल अर्ज़, आप फरमाए चलो फिरो ज़मीन में, फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्ल, देखो पहले लोगों का अंजाम क्या हुआ, अंबिया की मुखालफत करने वालों को क्या अंजाम हुआ, उससे इबरत पकड़ो। काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनकी अक्सरियत मुशरिक थी। पहले अमल लफ्ज़ का था कसबत दिना, अब उस अमल का नाम लिया, वो तबाह हुए शिरक की वजह से। काना अक्सरुहुम मुशरिकीन। आज भी हम जायज़ा लें तो शिरक बहुत थोक के हिसाब से पाया जाता है। लोग जब शिरक का नाम आता है अबू जहल का नाम लेते हैं, और भाई अपने दाएं बाएं भी देखो, कहीं यहाँ तो नहीं शिरक हो रहा है जी। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। ये तो वो काफिर थे इन चीज़ों की वजह से। और आगे क्या है, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परिस्तश करें शौक से जिसकी चाहे, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं,
شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، کیونکہ یہ پکے مور لگی ہے نا، یہ کچھ بھی کرنے نہیں کافر بن گئے۔ اسی کوئی ابو جہل وہ پوجا کرتے سن، وہ مشرک بنتے سن، اسی پاویں متھا رگڑ رگڑ کے کسا چھڑیے قبراں تے، یا کوڑے بابے کے سامنے جو مرضی کریے۔ وہ شیخ صاحب یہاں جو نماز کے بعد تبصرہ کرتے ہیں بزرگوں میں، وہ کئی دفعہ سناتے ہیں کہ میں فلاں جگہ تھا، وہ تو میں نے اپنے شیعہ دوست سے، میرا بڑا واقف تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہاری عورتیں گھوڑے کے نیچے سے کیوں گزرتی؟ تو وہ آگے سے وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پتہ ہے تو میں بتاتے نہیں، وہ پوچھ لینا شیخ صاحب سے کہ شیعہ سے پوچھا تمہاری عورتیں گھوڑوں کے نیچے سے کیوں گزرتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ گھوڑے جھنڈے ملنگ جس نو مرضی ہے پوجن، انہاں دے ایمان نہیں بگڑدا۔ شرک تو کیا ہو گئے، محفوظ ہو گئے، کچھ بھی کریں مشرک نہیں بنتے۔ کان اکثرهم مشرکین فاقم وجهك للدین من الدین القیم، تو اپنا رخ اس صحیح دین کی طرف متوجہ رکھ، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے۔ یہ تخویف اخروی، یوم سے مراد قیامت، لا مرد لہ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، اس کے لیے ٹلنا نہیں ہوگا۔ یہ من اللہ کا تعلق یاتیہ سے ہے، ان یاتیہ من اللہ یوم لا مرد لہ، اللہ اس کو لائے گا تو پھر ٹالے گا کون؟ ٹلے گا نہیں وہ کسی کے زور لگانے سے۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یصدعون، صدا کا معنی ہے شیشے کو توڑنا، شیشہ ٹوٹ جائے دوبارہ وہ دراز ختم نہیں ہوتی۔ فاصدع بما تؤمر، اے محبوب آپ اس وحی کو کھول کر سنائیں، حق باطل کو جدا کر کے، مبہم بات نہ کریں، واضح واضح سنائیں، بلغ، خوب وضاحت سے سنائیں۔ تو یصدعون، الگ ہو جائیں گے۔ من، یہ کیسے الگ ہوں گے؟ من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا کفر کا وبال اس پر پڑے گا، ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا، انفسہم یمہدون، وہ اپنے فائدے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ یمہدون، تمہید، تیاری کرنا، کہتے ہیں یہ تقریر ہے، ابھی تقریر نہیں شروع، تمہید ہے، یعنی ہموار کرتا ہے میدان کو۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، بدلہ دے گا ان کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اپنے فضل سے، ان کے عمل کے برابر نہیں، اپنے فضل۔ سبحان اللہ، بہت پرانی بات ہے، میں ایک بس میں بیٹھا تو وہاں ڈرائیور کے آگے اوپر لکھا ہوا تھا، عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں جائے منہ کالے۔ بڑا مجھے وہ پسند ہے، بہت پرانی بات، بس کے اوپر آگے لکھا ہوا تھا۔ یہ ترجمہ ہے، شیخ سعدی نے بھی فارسی میں اسی کا مضمون فرمایا ہے۔ اگر درد حد یک صلائے کرم، عزازیل گوید حسیب برم، بتحدید گر بر کشد تیغ حکم، بمانند کروبیاں سم و بکم۔ یہ شادی کا ہے شعر، اسی کا وہ ترجمہ ہے فارسی والا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا، تھوڑے عمل کا زیادہ انعام دے گا، فضل۔ انہ لا یحب الکافرین، وہ کافروں سے محبت نہیں ہے۔ ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بے شمار دلائل میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے توحید کے بے شمار دلائل ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ خوشخبری سنانے والی ہوائیں بھیجتا ہے، سنانے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں سارے
संभल जाते हैं, कपड़े शपड़े अपने महफूज कर लो और बच जाओ, बारिश आ रही है। वलियुज़ीक़कुम मिन रहमतिह, वलियुज़ीक़कुम मिन ताकि रहमतिह, तुम्हें अपनी रहमत का एक झोंका चखाए। ताकि तुम्हें अपनी रहमत के वलितजरियल फुल्कु बिअम्रिह, वलितजरियल ताकि कश्तियाँ चले अल्लाह के हुक्म से, ताकि कश्तियाँ चले अल्लाह के हुक्म से। उस पानी से जब ज़्यादा होता है फिर नदियाँ नाले फिर कश्तियाँ वो चलती हैं, और कश्तियाँ किसके हुक्म से चलती हैं? आदम जी 12 साल का बेड़ा पार कर छड़िया हजरत, 12 साल का बेड़ा डुबया है, बेड़ा पार कर छड़िया। अल्लाह फरमाता है कश्तियाँ मेरे हुक्म से चलती हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने यही कहा था, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, इसका चलना और रुकना अल्लाह के नाम की बरकत से होगा, मैं चलाने वाला रोकने वाला नहीं। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। तो इथे आदम जी बहाउल हक बेड़ा तक, बेड़े तकने वाला ते पार करने वाला कौन है जी? अल्लाह है। लितजरियल फुल्कु बिअम्रिही वलितबतगू मिन फज़लिही, वलितबतगू मिन और ताकि तुम तलाश करो अल्लाह का रिज़्क़। ताकि तुम तलाश ये वही करो लफ्ज़ है फज़ल, मिन फज़लिही, यानी ये रिज़्क़, ये खाना पीना कारोबार, ये मकसद नहीं, मकसद इबादत है। ये तो एक ज़रूरत, रिज़्क़ बक़द्र ज़रूरत। जितनी ज़िंदगी है इतना रिज़्क़ कमाओ। अच्छा, ज़िंदगी के तो पता ही कोई नहीं अगले घंटे है या नहीं। और लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन इला क़ौमिहिम, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन इला क़ौमिहिम, जो दुनियावी तस्वीर है, हमने आपसे पहले बड़ी शानों वाले रसूल अपनी कौमों की तरफ भेजे। हमने आपसे पहले बड़ी शान वाले रसूल वजाअहुम बिलबय्यिनात, वो उनके पास वाज़ेह दलाइल और मोजिज़ात लाए। उनके पास वाज़ेह दलाइल और फंतक़मना मिनल लज़ीना अजरमू, फंतक़मना मिनल लज़ीना, हमने मुजरिमों से बदला ले लिया। हमने मुजरिमों से बदला लिया। कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, वकान हक़्क़न अलैना, मोमिनों की मदद हमारी जिम्मेदारी है। इस सूरत में मोमिनों के साथ 3 दफ़ा नुसरत का वादा। शुरू में कहा था यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह, ये दोबारा कहा कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, और सूरत के इख्तिताम पर है व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों के साथ है उसकी मदद। 3 दफ़ा वादा नुसरत। अल्लाहुल, हाँ ये जो है ना, इस पर वो बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह वाले की, वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, तू अगर गालिब नहीं, कुछ कसर है ईमान में। इन क्या है जी, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। तो फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को, उस उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी जिब्रील बुढ़ा नहीं आया, फरिश्तों के लिए बुढ़ापा, बीमारी, टीबी शीबी कैंसर वगैरह नहीं है, तकड़े हैं, लेकिन तुम लायक बनो उनको बुलाने के। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह, अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह, अल्लाह वो है जो हवाएं भेजता है। अल्लाह वो है जो हवाएं भेजता है। हज़रत इब्न अब्बास ने कहा जमा का लफ्ज़ रहमत की हवा के लिए, जैसे अभी कहा था मुबश्शिरा, वो भी रियाह था, और रियाह मुबश्शिरा। या फिर फरमाया अल्लाह हवाएं भेजता है, पहले हवा आती है फतुसीरु सहाबा, फतुसीरु सहाबा, वो उड़ाती है बादल को, वो उड़ाती है बादल, फयबसुतुहु फिस समाए कैफ़ यशा, फयबसुतुहु फिस समाई कैफ़ यशा, अल्लाह ताला उस बादल को फ़ज़ा में जैसे चाहता है फैला देता है। अल्लाह ताला उस बादल को फ़ज़ा में जैसे चाहता है वयजअलुहु किसफ़ा, वयजअलुहु किसफ़ा, और उसको टुकड़े टुकड़े बनाता है, और उसको टुकड़े टुकड़े, फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिही, फतरल वदक़ यख़रुजु, तो बारिश को देखता है उसके फासलों से निकलती है, तो बारिश को देखता है उसके फासलों से निकलती ये है। ज़रा तफसील है बारिश की। हवा उड़ाती है बादलों को, हर तरफ से जमा करती है, फिर ऊपर नीचे होता है, फिर उसके अंदर से बारिश अल्लाह ताला बरसाते हैं। फ़इज़ा असाब बिही मन यशाअ मिन इबादिही, इज़ा असाब बिही मन यशाअ मिन इबादिही, जब वो बारिश जिसको चाहता है बंदों में से उन तक पहुँचा देता है। बारिश जिसको चाहता है इज़ा हुम यस्तबशिरून, इज़ा हुम यस्तबशिरून, फौरन वो खुशियाँ मनाते हैं, फौरन वो खुशियाँ मनाते हैं, खूब कणक होएगी, खूब फसल आएगा, खुशियाँ मनाते हैं।
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ فإن كانوا من قبل أن ينزل یقیناً تھے وہ پہلے اس سے کہ ان کی طرف بارش اتاری جاتی یقیناً تھے ان میں سے پہلے من قبل ہی من قبل اس وقت سے پہلے اس وقت سے لمبلسی لمبلس نا امید نا امید نا امید ہو چکے تھے غلے سے اور اپنے فائدے سے بارش سے وہ کھلا گئے خوش ہو گئے فانظر الى آثار رحمت اللہ وانظر إلى آثار رحمت اللہ دیکھ اللہ کی رحمت کے نشانات کو دیکھ اللہ کے رحمت کے نشانات ثمرات آثار نتائج بارش کے بعد کیا ہوتا ہے کیف یحیی الارض بعد موتها کیف یحیی الارض بعد کیسے زمین کو خشک ہونے کے بعد تازہ کر دیتا ہے موتها یہ آج کل بہار جو ہے دائیں بائیں دیکھو تو یہی چیز جو ہے اس کا منظر نظارہ کرو ان ذالک لمحیی الموتى ان ذلك لمحيي الموتى یہ جو زمین کو زندہ کرنے والا ہے یہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے زمین کو زندہ کرنے والا یہ مردوں کو زندہ کرنے جیسے والا بارش سے زمین کو زندہ کیا اللہ اپنے حکم سے سورہ اسرافیل سے دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهو على كل شيء وہی ہر چیز پر قادر ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا یہ آ گیا پہلے ریاح تھا اب ریح ہے ریح عذاب کی ہوا کے لیے فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا فرعون اس فصل کو زرد دیکھیں قبل از وقت پکنے سے پہلے ہوا گرم آ جائے اور وہ خشک ہو جائیں وہ پودے لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تولوا من بعده ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناشکری کرنے ہو والے جاتے ہیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے یہ آگے بات آ گئی ہے ایک تھوڑا سا اگر ٹائم 5-10 منٹ ہو یہ مضمون پہلے بھی چند دن پہلے آیا تھا نمل میں نمل کے بعد قصص تھی پھر عنکبوت 2 صورتوں کے بعد پھر روم میں پھر آ گیا اور انداز ایک ہی ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فإنك لا تسمع الموتى آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء ولا تسمع الصم الدعاء نہ آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو پکار سنا اذا سکتے ولوا مدبرین اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگیں جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے یہ ساتھ ہی ہوتا ہے بہروں کے ساتھ سامنے ہو تو اشارے وغیرہ سے سمجھ جائے گا بھاگ رہا ہو پیٹ پھیر کر کیسے سنائے گا وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم اور آپ اندھوں کو گمراہی سے رہنمائی نہیں کر سکتے اور آپ اندھوں کو گمراہی سے رہنمائی نہیں ان کر تسمعوا سکتے ان تسمعوا آپ نہیں سنا سکتے آپ نہیں سنا الا سکتے من یؤمن بآیاتنا الا من یؤمن ان بآیاتنا کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان کو جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں وہم لاتے ہیں مسلمون فہم مسلمون وہ فرما برداری کرتے ہیں وہ فرمانبرداری یعنی کرتے ہیں عمل کرنے سے مراد زندہ لوگ ہیں جو کہ حق کو سننے کی استعداد اور طلب رکھتے ہیں یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک لوگوں میں ایک مسئلہ ہے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے تو زیادہ لوگ یہ عرصوں والے ہیں اور قبروں سے جا کر چیزیں مانگتے ہیں وہ قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں اسی لیے ان سے مانگتے ہیں سودا بازی کرتے ہیں یہ کٹا لے لو مرغا لے لو بچے دو فلاں کرو دکان چلاؤ اور یہ جو ہے لاہور فلاں کی نگری ہے قصور فلاں کی نگری ہے پاک پتن فلاں کی نگری ہے ملتان فلاں وہاں تو اور شہر اولیاء ہے اور نگری ہے ان کی بڑے بڑے بزرگ وہاں پر جو ہے کمشنر کے درجے میں اور بڑے بڑے افسروں کے درجے میں بڑے بڑے عرص ہوتے ہیں تو یہ بڑے بڑے وہ سب لوگ سماع موتا کے قائل ہیں کہتے ہیں یہ سنتے ہیں تبھی تو ہم ان سے مانگتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے مردوں سے نہیں مانگنا چاہیے وہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے تو یہ مردوں کے نہ سننے کی جو بات ہے یہ سورہ انعام میں ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون
बात वो कबूल कर सकता है जो सुनता है। मुर्दे दोबारा क़यामत में अल्लाह उनको ज़िंदा करेगा तो अल्लाह के सामने पेश होंगे। इससे इशारतन मालूम होता है कि वो नहीं सुनते। और सूरह नमल में बिल्कुल ऐसे अल्फाज जो यहाँ हैं। और फिर कमाल ये है कि अल्लाह ताला ने मुर्दों के साथ साथ बहरों और अंधों का जिक्र भी फरमाया, अकेले मुर्दों का नहीं फरमाया। तो कुछ दोस्त ऐसी बात करते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ ये कहा आप नहीं सुना सकते, ये तो नहीं कहा सुनते नहीं। तो उनकी बात को जवाब देने के लिए साथ जो है बहरे और अंधे की मिसाल अल्लाह ने जिक्र फरमाई। तो यहाँ भी कहो जैसे वहाँ है आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, साथ ही है बहरों को नहीं सुना सकते, साथ ही है अंधों को नहीं दिखा सकते रहनुमाई। तो अगर वहाँ आप कहते हैं कि जी नहीं जी वो सुनते हैं आप नहीं सुना सकते, फिर इनको भी कहो जी बहरा सुनता है आप नहीं सुना सकते। फिर वो बहरा, उसको बहरा क्या नहीं बेवकूफ़ी, बहरा तो होता ही वो जो न सुने। फिर अगली बात कि क्या है जी अंधों को तू रास्ता नहीं बता सकता, तो यहाँ भी कहो अंधे को रास्ता नजर आता है तू नहीं दिखा सकता। तो कोई तस्लीम करेगा इस बात? अल्लाह ताला ने कितनी वजाहत फरमाई, सिर्फ मुर्दों का जिक्र नहीं किया, बहरों और अंधों का साथ ही जिक्र है। न अंधा देखता है न कोई दिखा सकता है, न बहरा सुनता है न कोई, तो न मुर्दा सुनता है न कोई उसको सुना सकता है। तीनों एक जैसे। अगर वहाँ बात करते हैं तो यहाँ भी करें। एक मिनट जरा मेरी बात हो जाए, फिर आपको खुला टाइम, रोज़ा है, मेरा कोई काम नहीं, ना मेरी दुकान है ना मेरा कोई और काम है, मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँ सारा दिन, लेकिन पहले आप सुन लें। तो सूरह नमल में भी यही बात, तीनों का जिक्र इकट्ठा, और यहाँ भी इसी अंदाज से 3 सूरतें हो गई। इसके बाद आती है सूरह फातिर, ये 21वां पारा है, वो फातिर 22वें पारे में सूरह फातिर है, यासीन से पहले। उसमें आता है वो मा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर, ए महबूब कब्रों में पड़े हुओं को तो नहीं सुना सकता। वहाँ सिर्फ मुर्दों का जिक्र है, वहाँ बहरों और इन अंधों का जिक्र नहीं, अकेले मुर्दों का। हाँ कब्र का लफ्ज़ है, कब्रों में पड़े हुओं को तो नहीं सुना सकता। ये पारा हमारे पास चूँकि पारे हैं, तो कुरान होता तो मैं अभी निकाल कर आपको सुनाता। यही अल्फाज हैं सूरह फातिर 22वीं आयत, तो कब्रों में पड़े हुओं को नहीं सुना सकता। तो ये कुरान की इतने वाज़ेह ऐलान है। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत एक बहुत बड़ा मुफस्सिर है, सब लोगों की तफसीर लाइब्रेरियों में वो तफसीर होती है, रूहुल मानी, तो उसने भी यहाँ पर इस मसले पर खूब खुल कर कहा है, मुर्दे नहीं सुनते, इन्हीं आयतों के हवाले से। और हमारे उलमाए देवबंद एक कस्बा है, हिंदू भी उसमें रहते हैं, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत है। बरेली, ये मुझे एक लफ्ज़ आपको मैंने सुनाया होगा लेकिन काफ़ी देर हो गई। ज़ियाउल हक मरहूम मुल्तान में एयरपोर्ट पर उतरा तो उसको लोगों ने कहा जी आजकल ये देवबंदी और बरेलवी का कुछ झगड़ा शगड़ा चला हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो उसने फौजी जर्नैल था, उसने ऐसी बात की, मुझे बड़ी समझ आई कि कोई आलिम भी शायद ऐसा, उस वो अखबार में जो छपा सुर्खी थी, उसने कहा देवबंद और बरेली ये इंडिया के 2 शहर हैं, हम 1947 में छोड़ कर आ गए, इंडिया के शहरों पर हमारे पाकिस्तान में लड़ाई का कोई जवाब नहीं। उसने अपने अंदाज से बात की, मुझे बड़ा मजा आया वो पढ़कर। वो 2 शहर हैं, न वही देवबंद में उतरी न बरेली में उतरी। सूरतें कुछ मक्की हैं कुछ मदनी हैं। मक्के मदीने में कुरान नाजिल हुआ, देवबंद बरेली में नहीं नाजिल हुआ। खैर इसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं, बस इतना लफ्ज़ मुझे बड़ा, कितनी अजीब बात की उसने कि यहाँ पाकिस्तान में इंडिया के शहरों पर लड़ने की क्या जवाब। खैर
शेर की बात नहीं है, बात तो है अकीदे की। और बात जो लोग, हाँ तो मैं कह रहा था उलमाए देवबंद का जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नाम है मौलाना रशीद अहमद गंगोही। और मौलाना इलियास साहब रहमहुल्लाह के बड़े भाई थे मौलाना यहया साहब, वो उनके आखिरी शागिर्दों में से थे। और हज़रत मौलाना इलियास साहब ने भी हज़रत गंगोही को बचपन में देखा अपने भाई के साथ। असल पढ़ते तो वो थे उनके पास, तो ये अपने भाई के पास गए तो इन्होंने देखा है। तो बड़े आलिम थे और उलमाए देवबंद में से सबके पीर और उस्ताद। और तो उनका फतावा रशीदिया है, उनका नाम रशीद अहमद था, तो फतावा रशीदिया, उसमें बार बार लिखा हुआ है मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते। तो सवालों की जवाब मुख्तलिफ लोगों ने किए, तो जवाब उन्होंने दिए नहीं मुर्दे। और पूरा एक छोटा सा एक उनका एक रिसाला भी है, यानी मकातिब रशीदिया, जो लोगों ने ख़त के ज़रिए सवाल किए तो उन्होंने जवाब दिया। तो एक देवबंद के बड़े मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने ख़त लिखा कि कुरान से पता चलता है कि मुर्दे नहीं सुनते, बाज़ अहादीस से पता चलता है सुनते हैं, तो इसमें जो है तत्बीक ज़रा क्या है। तो हज़रत ने फरमाया कि हमारा हनफियों का, देवबंदी नहीं हनफी, हमारा हनफियों का अक़ीदा हज़रत आयशा के अक़ीदे के मुताबिक सिमाए मौता का रद्द है, नफ़ी है। हम नहीं कायल मुर्दों के सुनने के, कुरान के मुताबिक, साथ ये लफ्ज़ भी है, हमारा हनफियों का अक़ीदा कुरान के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के मसलक के मुताबिक वो अदम सिमा है। और जिन अहादीस में कोई ऐसा लफ्ज़ आता है तो हम कुरान पर अक़ीदा रखेंगे और उन हदीस में तावील करेंगे। अक़ीदा कुरान पर रखेंगे, हदीस में तावील करेंगे। अच्छा, ये उनका ख़त है, छपा हुआ है उनके फतावे के साथ। तो ये एक मशहूर हनफी फ़क़ीह है इब्ने हम्माम, हिदाया बड़ी किताब है जो पढ़ाई जाती है दरस निज़ामी में, और उस हिदाया की शरह है 8 जिल्दों में। उसमें लिखा हुआ है कि अक्सर हनफी मशाइख मैयत के न सुनने के कायल हैं। एलम अन्न अक्सर मशाइखिल हनफियत अला अन्नल मैयत ला यस्मु, वो नहीं सुनता मुर्दा। तो ये इबारत बड़ी मशहूर है, जो इस मसले पर लिखते हैं वो इस इबारत को लिखते हैं। तो कुरान में एक दफ़ा भी आ जाता तो काफ़ी था। 4 जगह अनाम, नमल, और क्या है जी, और ये रूम और सूरह फातिर, 4 सूरतों में जिक्र किया गया और मिसालों के साथ अल्लाह ने समझाया। एक लफ्ज़ छोटा सा बड़ा, यानी शाह अब्दुल कादिर जो पहले उर्दू तर्जुमा लिखने वाले हैं, हज़रत शाह वलीउल्लाह के बेटे, उस जगह सूरह फातिर के ऊपर उनका छोटा सा हाशिया है, आप देख सकते हैं कि कुरान में है कि मुर्दा नहीं सुनता, हदीस में आता है कि सलाम करो, कब्रिस्तान में या तो सलाम करो। तो फरमाते हैं कि सुनती है रूह, कब्र में पड़ा है धड़ जो नहीं सुनता। बस इतना लफ्ज़ है, छोटा सा, 1-2 सतरें हैं, इससे बहुत है। उन्होंने फ़र्क किया रूह और जिस्म का, कि सुनती है रूह, रूह तो चली गई जन्नत में मोमिन की, और हम यहाँ दुनिया में हैं। तो इस बात को हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी मुहद्दिस बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि मैयत सुनती है अपने जहान के लोगों की, यानी रूह चली गई आलम बरज़ख में, तो बरज़ख वालों की बात सुनती है। कब्र है यहाँ दुनिया में, तो दुनिया वालों की नहीं सुनती, वो और जहान है, ये और जहान है। तो वो बरज़ख में है रूह, यहाँ हम इनसे बातें करें तो रूह तो है दूर है, वो चली गई बरज़ख में, जन्नत में। तो एक बात में भी बात ऐसी है कि इस पर सैकड़ों सफ़हात की किताबें हैं, लेकिन मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ मुख्तसर सा, कि जो लोग कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते,
وہ मुर्दों की दुश्मन नहीं है, हर किसी ने खुद मरना है, मुर्दों के दुश्मन नहीं, वो हैं लोगों को शिरक बचाने के जज्बे से सरशार। जब ये कहा जाए कि ये सुनते हैं, फिर जो सुनने के कायल हैं वो कहते हैं देखते भी हैं, फिर आगे कहते हैं पहचानते भी हैं। जो सिमाए मोता की किताबें हैं जो कहते हैं कायल हैं, उनमें ये सब बातें लिखी होती हैं कि मुर्दा सुनता है, देखता है, पहचानता है, खुश होता है, परेशान होता है। अगर ऊपर को गलत बातें गलत काम किए जाए तो परेशान होता है, अगर कोई अच्छे आदाब वगैरह, तो ये उन्होंने ये लिखा है। सिर्फ सुनने की बात तक नहीं जाते बल्कि इन सब चीज़ों की नहीं। फिर बाज़ किताबों में लिखा है कि सिराने की तरफ से सलाम करो, कब्रिस्तान में भी जाओ तो सिराने की तरफ से सलाम करो, हाँ पैंती की तरफ से करो, सिराने की तरफ से ना करो, ताकि मुर्दे को मुड़कर देखने की तकलीफ ना हो। अगर सिराने पर सलाम करोगे तो उस बेचारे को तकलीफ होगी, तो पैंती की तरफ से सलाम करो ताकि उसको मुश्किल ना पेश आए। ये सारी बातें वो फिर मानते हैं। तो मकसद क्या है जो कहते हैं नहीं सुनते, कि जब हम पहली इसको काट देंगे ना सीढ़ी को कि तुम्हारी बातें नहीं सुनते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहकाफ में, हुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो इनकी पुकारों से बेखबर हैं। और मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो कसम खाएंगे कि इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, अगर तुमने कुछ किया है हमारे साथ उठक बैठक हमें कोई पता नहीं। ये और सूरतों में है इनकार के अलावा। फ़कफ़ा, सूरह यूनुस में, फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, कसम खाकर कहेंगे हमें कोई पता नहीं तुमने हमारी कोई इबादत की है। और हम अन दुआइहिम गाफिलून, वो इनकी पुकारों से गाफिल है। तो ये सारी आयतें मिलाओ तो मकसद ये है कि जब कहा उनको पता ही नहीं तुम्हारे जाने का, तुम्हारे बातों का, तुम्हारी पुकारों का, तुम्हारे मांगने का, तुम्हारी ज़रूरतों का उनको पता नहीं, सुनते नहीं, तो ये अकीदा बन जाएगा तो फिर उनसे लोग मांगेंगे नहीं, फिर मुशरिक नहीं बनेंगे। तो शिरक से बचाना बहुत अहम है। जैसे मादी बीमारियों में आजकल कैंसर ख़तरनाक है, कैंसर तीसरे दर्जे में पहुंच गया, डॉक्टर साहब हैं, तो फिर लाइलाज हो गया तीसरे। ऐसे ही शिरक जो है ये रूहानी कैंसर है। तो एक आदमी कैंसर का बीमार है, उसके सर में दर्द है, उसकी उंगली जख्मी हो गई, तो आदमी उस कैंसर का इलाज तो ना करे, उसकी उंगली को पट्टियाँ करे और उसके जो है कि आँखों में कतरे डाले कि इसकी आँखें ठीक हो जाए, ये कानों को इलाज करे, कैंसर का इलाज ना करे। तो असल तो जो मुहलिक बीमारी है उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। तो जो शिरक है ये मुहलिक रूहानी बीमारी है। और ये कहना कि सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, खुश होते हैं अच्छी बातों से और नामुनासिब बातों से परेशान होते हैं, अगर ये सारी बातें की जाए तो फिर लोगों को कब्र परस्ती से नहीं रोका जा सकता। मकसद ये मुर्दों से दुश्मनी मकसद नहीं है। एक दफ़ा फिर तर्जुमा कर लो। ये बात तो हाँ जी, कहते हैं ना, अंधा के बात गुफ्तम गमे दिल तरसीदम कि दिल आजुर्द शबी वरना सकुन बिस्यारस। एक अल्लाह वाला कहता है कि मैंने अपने दिल का गम तुझे थोड़ा सा बताया, ज़्यादा नहीं बताया कि तू परेशान न हो जाए, वरना यहाँ बातें बहुत हैं। मैंने कहा सैकड़ों सफ़हात की किताबें हैं, तो मैंने तो चंद मिनट एक बात आपको थोड़ा सा मकसद बताया कि मकसद क्या। अच्छा, तो ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, ظهر الفساد في البر والبحر, खुशकी और समंदर में अब बिगाड़ आम हो गया, समुद्र में बिगाड़ आम हो गया, बिमा कसबत ऐदीना, बिमा कसबत अयदीना, लोगों के अमाल की वजह से, लोगों के अमाल की वजह से। यहाँ में एक लतीफ़े के तौर पर मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी सन 80 में फौत हुए। वो कहा करते थे, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत बात करते थे हर जगह,
تو وہ ان سے میں نے سنا ان کانوں سے، میں نے ان کے پاؤں دبائے، سر مالش کی الحمدللہ، تو وہ کہتے تھے اگر سمندر کی تہ میں دو مچھلیاں لڑیں گی تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے، اس دنیا میں جہاں فساد ہے وہ کہتے تھے اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، بما کسبت ایدینا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو چکھائے ان کے بعض اعمال کی سزا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں، قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیں چلو پھرو زمین، فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا ہوا ان کا انجام جو پہلے گزرے، کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک تھی، فاقم وجہک، تو سیدھا رکھ اپنا چہرہ، دین القیم، صحیح دین کی طرف، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، لا مرد لہ، اس کے لیے ٹلنا نہیں ہوگا، من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، یوم یصدعون، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، ومن عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا، فلانفسہم یمہدون، وہ اپنے فائدے کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، بدلہ دے گا ان کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، من آیات، اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری سنانے والی، ولیذیقکم من رحمتہ، تاکہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے امرت بارش ہے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا رزق، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، ہم نے آپ سے پہلے بڑے رسول بھیجے، تعداد زیادہ شانیں زیادہ، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس واضح دلائل اور معجزات لائے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے مجرموں سے بدلہ لے لیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہماری ذمہ داری ہے مومنوں کی مدد کرنا، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، وہ بادل اڑا کر لاتی ہے، فیبسطہ فی السماء، اللہ تعالیٰ اس بادل کو فضا میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہے، یہ ابھی جو بادل پھر رہے تھے یہاں نہیں برسے، ادھر ادھر برسے تو ٹھنڈی ہوائیں، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے بناتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، وہ بارش کو دیکھتا ہے اس کے درمیان سے نکلتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، جب پہنچاتا ہے وہ بارش، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فوراً یہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ ابھی مارچ ختم ہونے والا ہے نا، 13 کیا ہوگا، 13 اپریل کو یہ سکھ لوگ پنجاب میں ویساکھی میلے ہیں جی، اور جانوروں کو دوڑاتے ہیں اور بڑی خوشیاں اور جلیبیاں اور سارا، یعنی گندم کاٹنا شروع کرتے ہیں نا تو خوشیاں مناتے ہیں، اچھا، اذا ہم یستبشرون، وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، من قبل ان ينزل علیہ، پہلے اس سے کہ بارش ان پر اتاری جائے، من قبل ہی، اس وقت سے پہلے، لمبلسی، نا امید، انظر الى آثار رحمت اللہ، دیکھ اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف، بارش کے کیا اثرات، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے تازہ کرتا ہے زمین کو خشک ہونے کے بعد، ان ذلک لمحیی الموتیٰ، وہی رب مردوں کو زندہ کرنے والا، وہو علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قادر، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں عذاب کی ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اس فصل کو زرد دیکھ لیں، یعنی قبل از وقت خشک ہو جائے،
लज़ल्लू मिन बादि यकफुरून, हो जाते हैं उसके बाद नाशुक्री करते हैं। हो जाए उसके बाद फ़इन्नक ला तुस्मिउल मौता, फइन्नक ला तुस्मिउल मौता, बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ, वला तुस्मिउल सुम्मत दुआ, आप बहरों को अपनी पुकार नहीं सुना सकते। आप बहरों को अपनी पुकार नहीं इज़ा सुना सकते। वल्लौ मुदबिरीन, इज़ा वल्लौ जब वो मुदबिरीन, पीठ के फेर कर भागने लगे। जो पीठ फेर कर वमा भागने लगे। अंत बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम, वमा अंत बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम, आप अंधों को रास्ता नहीं बता सकते आप उनकी अंधों को गुमराही रास्ता से। नहीं बता सकते। पहले बोल जाते हैं, ये अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, पूरा सुनकर फिर इन तुस्मिउ, इनको आप नहीं सुना सकते, आप नहीं सुना इल्ला मन युमिनु बि आयातिना, इल्ला मन मगर युमिनु उनको जो हमारी आयतों को मानते हैं, जो हमारी आयतों को मुस्लिमून, वो फरमाबरदार होते हैं। ऊपर को बता रहा है। ये जो हम कब्रिस्तान में जा कहते हैं